Hello everyone. So today's topic is BCD to decimal decoder. The BCD, as I have already told you, also known as 8421, also based on 8421 code, and its name is binary coded decimal number. And for decimal number, we know that it's a number whose base is 10. It means it started from 0 to 9 number. So we have to design a combinational logic circuit which can convert this 8421 sort of 8421 code, or we can say BCD number, into a decimal decoder. So for that, the first step is always to make a block diagram for the combination logic circuit. So if you look at the block diagram of the BCD to decimal decoder, so in its block diagram, we can use four inputs and then the number of outputs from will be 10. That means if 0 to 9, say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 till 10. BCD to decimal decoder. So the four inputs may be A, B, C, D, and the output may be decimal number 0, 1, 2, 3, and so on till decimal number 9. So this side is considered to be as an input side and this side is considered to be as an output side for the BCD to decimal decoder. This BCD to decimal decoder is also known as 4 is to 10 decoder. It means it has 4 inputs and 10 output. 4 input for the BCD number, that is binary coded decimal, and 10 is stand for the output, that is decimal output, considered to be as its base starting from 0 to 9. So after the block diagram, the next step is to write the truth table for the above circuit, and that truth table should constitutes of 4 inputs and 10 output. The 4 inputs as such, again A, B, C, D. These are the 4 inputs, and the 10 outputs may be D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, and D9. So these are the inputs and output that should be written in the truth table. So if we talk about the possible combinations in the truth table for the given inputs and output, so we can get it from using this formula 2 to the power n, where n is the number of inputs, 2 and number of inputs is 4, so we can get 16 possible combination for this truth table. So for the 16 combination, we can write the input as starting from 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0,
1 0 0 1. After this we can write 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1. So you can see कि ये जो 4 bits of numbers we have written in the binary form is nothing but 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. सो ये जो 4 बिट्स नंबर्स हम लोगों ने लिखे हैं ये बेसिकली ये 0 से 15 नंबर हैं जो कि पॉसिबल 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे ट्रुथ टेबल में. ओके, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर. सो बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर जो है वो हम लोग को बनाना कितनी रेंज तक है, 0 से 9 तक. So जो input we will be considering that should be starting from 0 till number 9. Only these input are to be allowed, and rest 10 to 15 these inputs it can be used or may not be used. So we can put 10 to 15 as a don't care condition when we are drawing the K map. इसको ऐसे समझ लीजिए सिंपल वे में कि हमें बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर बनाना है. तो बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर बनाने के लिए हमें जो आउटपुट चाहिए वो 0 से 9 तक चाहिए. तो 0 से 9 आउटपुट लेने के लिए हम लोग को कितने इनपुट मिल रहे हैं, सिर्फ 0 से 9 तक इतने ही रिक्वायर्ड है. 10 से 15 की ज़रूरत नहीं है. तो जब हम के मैप डिज़ाइन करेंगे तो 10 से 15 के जो सेल होंगे उनको हम लोग किस कंडीशन में डालेंगे, डोंट केयर कंडीशन में. इसका मतलब अगर मैं इसको सेग्रीगेट करूँ ये रेड लाइन से जो इसको मैंने अलग किया, 0 से 9 के जो नंबर्स होंगे वो यूज होंगे. 10 से 15 का जो इनपुट्स होगा वो डोंट केयर कंडीशन में जाएगा. सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डोंट केयर को भी रिप्रेजेंटेड विद सिंबल लाइक दिस, क्रॉस नोटेशन. सो टोटल यहाँ से यहाँ तक मैं इसको लिख देता हूँ डोंट केयर कंडीशन. यानी इसको हम यूज़ करें या ना करें आउटपुट पे हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब बात करते हैं इस ट्रुथ टेबल के आउटपुट की. सो जब हमें 0 0 0 चारों इनपुट 0 0 देंगे, से यहाँ पे 0 दिया, यहाँ 0 दिया, यहाँ पे 0 दिया, यहाँ पे 0 दिया, तो 0 0 मीन्स व्हाट, मुझे कौन सा आउटपुट मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए. तो 0 कौन सा है, D1 वाला है. यानी सिर्फ मेरा ये वाला इनपुट हाई होगा, रेस्ट सारे इनपुट क्या होंगे उस टाइम, 0 होंगे. अब मान लो मैं इनपुट चेंज करके 0 से क्या देता हूँ, 0 0 0 1 सेकेंड वाला, तो मुझे कौन सा इनपुट मिलना चाहिए, D1 वाला मिलना चाहिए. तो D1 हाई होगा, रेस्ट सारे इनपुट क्या होंगे, आउटपुट हमारे 0 होंगे. जब 0 0 1 0 देंगे यानी 2 नंबर देंगे, बाइनरी डेसिमल 2 यानी बाइनरी में उसको लिखेंगे 4 बिट में, तो 0 0 1 0 होगा. तो मेरा थर्ड इनपुट D2 हाई होगा, रेस्ट सारे आउटपुट जो होंगे वो मेरे 0 होंगे. सिमिलरली D1 हाई होगा, D3 हाई होगा, बाकी सब क्या होंगे, आउटपुट 0 होंगे. जब 4 बिट इनपुट देंगे तो D4 हाई होगा, बाकी सब क्या होंगे, 0 होगा. तो ऐसे करके आप 1 बाय 1, D5 हाई होगा एक बार, D6 हाई होगा, तो इसको भी आप लिख लीजिए. एक बार D6 हाई होगा, जब हम 7 वाला इनपुट देंगे दिस वन, तो D7 हाई मिलेगा, बाकी सब क्या मिलेंगे, लो.
जब D8 वाला इनपुट देंगे, यानी D8 का मतलब 1 0 0, यानी यहाँ पे आप 1 दोगे, फिर 0 दोगे, फिर 0 दोगे, फिर 0 दोगे, तो 1 0 0 देने का मतलब क्या है, आपका D8 नंबर जो होगा वो हाई होगा, D8 पे आउटपुट मिलेगा, बाकी रेस्ट आपको क्या हो रहेंगे, 0 रहेंगे। तो दिस इज हाउ वी राइट ए ट्रुथ टेबल। फाइनली जब आप 1 0 0 1 दोगे, यानी 9 नंबर दोगे, तो 9th वाला इनपुट हाई होगा, आउटपुट हाई होगा, रेस्ट ऑल आर द आउटपुट, लेट्स ऑल आउटपुट विल बी लो। So this is how you write a truth table for the BCD to decimal decoder. तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया, ट्रुथ टेबल बनाया, अब हमें बनाने हैं इसका लॉजिक डायग्राम। तो लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए वी हैव टू यूज़ ए के मैप। सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि के मैप हम लोग आउटपुट को देख के बनाते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट कितने हैं, 9, तो हमें 9 के मैप्स कम से कम बनाने होंगे, एक D0 के लिए, एक D1 के लिए, एक D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 एंड D9, यानी 9 के मैप्स हम लोग को बनाने होंगे। और कितने वेरिएबल का के मैप बनाना होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द इनपुट्स। तो हाउ मैनी इनपुट्स आर देयर, 4, तो हमें 4 वेरिएबल के मैप बनाने होंगे, जिसमें आपके कितने सेल होंगे, 16 सेल होंगे। सो पहले हम लोग के मैप बनाएंगे D0 के लिए, फिर हम D1, D2, D3 एंड सो ऑन D9। सो D0 के लिए अगर के मैप बनाएंगे तो हमें 16 सेल का के मैप बनाना होगा, दैट मीन्स 4 वेरिएबल के मैप, जिसमें सेल नंबर 10 से 15 तक जो होंगे वो डोंट केयर कंडीशन के होंगे। सो अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है 16 सेल, जिसमें आपके 4 वेरिएबल हैं। द वेरिएबल्स आर ए बी सी डी। इसको सेल नंबर देंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये इतने सेल नंबर होंगे। अब इन सेल नंबर में हम लोग को ये सेल को फिल करना है। तो फिल करने के लिए आप देखिए 10 सेल से लेके 15 सेल तक कौन सी कंडीशन है, डोंट केयर है। तो उस डोंट केयर कंडीशन को हम लोग और पहले फिल कर देते हैं, यानी सेल नंबर 10 टू 15, दिस 11 12 13 14 15, ये किस में जाएंगे, डोंट केयर में, क्योंकि ये यूज़ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग BCD टू डेसिमल डिकोडर बना रहे हैं। और BCD टू डेसिमल डिकोडर बनाने के लिए हम लोग के पास 0 से 9 तक ही इनपुट यूज़ होंगे, 10 टू 15 वाले इनपुट यूज़ में नहीं है। तो इनको यूज़ करके और या नहीं करके आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डोंट केयर कंडीशन। रेस्ट, अब जब आपको इनपुट भरना होगा D0 के लिए, तो आप देखिए आउटपुट किस में हाई है, सिर्फ ये आउटपुट 1 मिल रहा है D0 पे, रेस्ट। तो D0 जब 1 है तो कौन सा सेल है, मिन टर्म्स का कौन सा है, सेल नंबर 0 का। तो उसको फिल करने के लिए आप सेल नंबर 0 को क्या कर दें, 1 कर दें। बाकी रेस्ट आप अगर आप देखें तो कोई और तो इनपुट हाई नहीं है D0 में, तो इट मीन्स आपका जो के मैप बना वो इस तरीके का बना फॉर D0। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आप देखें ग्रुपिंग कहीं नहीं हो रही है, डोंट केयर को यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1 अलोन है। तो इसको एक सिंगल ग्रुप हम लोग अगर मान लें, तो आपकी यहाँ से इक्वेशन क्या मिलेगी, इसको आप फिल कर लें। ये आप इसको बोलते हैं ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बी बार। सिमिलरली आप इसको बोलेंगे सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार। तो ये ग्रुप को जब आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो आपको जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी इसकी वो क्या मिलेगी, इधर से रो से क्या आया, ए बार बी बार, और ऊपर कॉलम से क्या मिला आपको, सी बार डी बार। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ ए के मैप फॉर D0। सिमिलरली हम लोग D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D9 तक ये के मैप को ड्रॉ करेंगे ऐसे ही, और ऐसे ही वेरिएबल्स को लिखेंगे। सो सिमिलरली हम लोग सारे के मैप बनाएंगे, ये हमने D0 के लिए बनाया था। सिमिलरली ये जो के मैप बना, दिस वन इज फॉर D1, this one is for D2, this one is for D3, this one is for D4, this one is for D5,
this one is for D6, this one is for D7 and this one is for D8. and similarly जब हम लोग D9 के लिए बनाएंगे तो एक और के मैप बनेगा. सो दिस वन इज़ फॉर D9. ये 9 के मैप आपको बनाने होंगे डिपेंडिंग अपॉन द टेबल. कॉन्सेप्ट वही है कि 10 से 15 तक सब डोंट केयर कंडीशन में चलेगा. तो सब हम लोग बनाए हुए हैं. अब जैसे D0 के लिए बनाया था वैसे D1 के लिए बनाएंगे. तो हम लोग D1 को अगर देखें तो D1 का आउटपुट हमारा ये है, यानी कौन सा सेल को हमें फिल करना होगा, सेल नंबर 1 को. तो सेल नंबर 1 को जब हम लोग फिल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 1 लगाएंगे. अगेन ये सिंगल एक ग्रुप बनेगा लोन. तो इसका जो आउटपुट मिलेगा आपको क्या मिलेगा D1 के लिए, एक कॉलम रो से A बार B बार, कॉलम से C बार D. अगर हम बात करें D2 के लिए तो D2 को अगर देखें D2 में ये आउटपुट हाई है. अब मिन टर्म्स कौन सा है हमारा, सेल नंबर 2 को हम लोग फिल करेंगे. तो सेल नंबर 2 को हम लोग 1 कर देंगे. तो एक ग्रुपिंग देखेंगे तो यहाँ पे एक ग्रुपिंग इसका हो रहा है इस डोंट केयर के साथ, यानी 2 का ग्रुप बनने की पॉसिबिलिटी है. तो डोंट केयर के साथ जब ग्रुप बनेगा तो ये इस 1 के सामने ये रो है, इस x के सामने ये रो है. तो इसमें से हम लोग कॉमन को ले लेंगे. तो कॉमन क्या बचा यहाँ पे हमारा, ये B बार, इसके ऊपर कॉलम क्या है C D बार, इसके ऊपर कॉलम क्या है C D बार. तो यहाँ से मिलेगा C D बार. ठीक है. अब अगर हम बात करें D3 की तो D3 में अगर आप देखें मिन टर्म्स 3, यानी मिन टर्म 3 हमारा हाई है. तो सेल नंबर 3 को फिल करेंगे. जब सेल नंबर 3 को फिल करेंगे तो एक ग्रुप इसका बनेगा अलॉन्ग विद दिस. तो इसके साथ इस 1 के साथ अगर हम रो में देखें A बार B बार, इस x के साथ रो में देखें A B बार. तो अगेन क्या मिला हमें B बार. कॉलम में क्या मिला C D, तो यहाँ से मिला हम लोग को C D. D4 की बात करें अगर D4 में देखो मिन टर्म्स ये आउटपुट हाई है, उसका मिन टर्म कौन सा है 4. तो 4 नंबर सेल को हम लोग फिल कर देंगे 1. जब 4 नंबर सेल को फिल करेंगे तो ये एक ग्रुप बन रहा है डोंट केयर के साथ. डोंट केयर को हम लोग ग्रुप में यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी. अगर पॉसिबिलिटी है तो यूज़ किया जा सकता है, नहीं है तो उसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं. तो इसके साथ देखिए एक रो में A बार B है, इसमें A B है. तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, कॉमन B बचा. और कॉलम में क्या है C बार D बार. सिमिलरली D5 को अगर देखें D5 में हमारे पास जो मिन टर्म है वो 5 है. तो 5 नंबर सेल को फिल करेंगे तो अगेन ये वाला ग्रुप आप लोग को मिलेगा. इस वाले ग्रुप में इसके सामने A बार B और इसके सामने A B. अगेन द कॉमन टर्म इज B. और कॉलम में क्या है C बार D. जब हम आगे चलेंगे से ये हुआ D6. तो D6 के लिए जब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन तो D6 के लिए सेल नंबर 6 हम लोग का होगा. D6 है तो उसके लिए मिन टर्म कौन सा में भरना होगा 6 भरना होगा. तो उसके लिए 6 नंबर सेल को हम लोग फिल करेंगे. तो इसका जो पेयरिंग होगी इसके साथ होगी. इसके साथ जब पेयरिंग होगी तो इसके सामने हमारा रो मिला A बार B और इसके सामने रो मिला A B. तो यहाँ से क्या मिला B, कॉलम क्या मिला C D बार. ये इक्वेशन मिली. D7 के लिए हम लोग 7 नंबर को फिल करेंगे. ये D7 है तो इसके लिए 7 नंबर मिन टर्म्स को फिल करेंगे सेल को. तो अब अगेन हमारा जो ग्रुपिंग होगी इसके साथ होगी. तो इसके सामने जो रो है A बार B A B, तो यहाँ से कॉमन मिला B. कॉलम क्या बना हमारा C D. 8 के लिए हम लोग को 8 नंबर सेल को फिल करना होगा. 8 नंबर सेल को फिल करेंगे तो यहाँ से कॉलम बना, इसके साथ ग्रुपिंग हुई. इसके साथ ग्रुपिंग हुई तो हमें यहाँ से क्या मिला, इस क्रॉस के सामने A B है, 1 के सामने क्या A B बार. तो यहाँ से क्या मिला A, कॉलम से क्या मिला C बार D बार. और 9 को अगर D9 को सॉल्व करेंगे तो 9th नंबर को सेल को हम लोग फिल करेंगे. तो इसकी ग्रुपिंग इसके साथ होगी, 2 पेयर का ग्रुप बनेगा. तो इसके सामने रो A B और रो है A B बार. तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को A और कॉलम से क्या मिलेगा C बार D. तो इस तरीके से हम लोग 1 बाय 1 सारे आउटपुट्स के लॉजिक को लिख लेंगे. सो फाइनली
जितने भी के मैप के आउटपुट थे उनको मैंने इस फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया. नाउ द फाइनल स्टेप इज टू डिज़ाइन द लॉजिक डायग्राम. सो लॉजिक डायग्राम में हम लोगों ने 4 इनपुट लिए, ए बी सी डी, और उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी हैं इक्वेशन में, ए बार बी बार सी बार. तो नॉट गेट लगा के ए नॉट बी नॉट सी नॉट एंड डी नॉट हम लोगों ने ले लिया. सो लेट अस लुक कि डी नॉट कैसे मिलेगा. तो डी नॉट के लिए हमें ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट चाहिए. तो पहले अगर ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लूँ तो इधर से लेना होगा, यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा. बी कॉम्प्लीमेंट आएगा तो इससे आएगा बी नॉट. सी कॉम्प्लीमेंट आएगा तो इस इनपुट से आएगा, और डी कॉम्प्लीमेंट आएगा तो यहाँ से आएगा. और ये चारों इनपुट किस में जाएंगे, एंड गेट में. तो फाइनली हमें यहाँ से एक आउटपुट मिलेगा. दैट आउटपुट इज डी नॉट. सिमिलरली सेकंड के लिए ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी. ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी. तो यहाँ से जो हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा वो D1 का मिलेगा. थर्ड D2 के लिए बी बार सी डी बार. तो बी बार के लिए सी बार के लिए दिस इनपुट लाइन, और डी 3 इनपुट का एंड गेट लगेगा. D2. D3 के लिए बी बार सी डी. तो बी बार के लिए सी डी. D3. D4 के लिए बी सी बार डी बार. D4. D5 के लिए बी सी बार डी. D6 के लिए बी सी डी बार. D6. D7 के लिए बी सी डी. D7. और D8 के लिए ए सी बार डी बार. ए सी बार डी बार. D8. And finally for D9 A
C bar and D. सो इस तरीके से हम लोग लॉजिक सर्किट को डिज़ाइन करते हैं. सो दिस इज़ all for the BCD to decimal decoder. Thank you.